Assalamu alaikum students. As you know that we are studying chapter 4th of 8th class history, namely tribalism, decus and the vision of a golden age. And we have already discussed two topics from this chapter. The first topic was life of the tribalists before the colonial rule. And the second topic was what was the impact of colonial rule on the lives of these tribalists. Okay, and I will not repeat these two topics, because if you do need, you can watch these two topics on my YouTube channel. Again, I will proceed further. Today I will tell you the names of certain tribes who are residing in India. Second, the certain revolts. Okay, see the certain tribes who are living in India: Santhals, Orons, Mundas, Khonds, Begas, Van Gujars, Labadis, and Bakarwals. These were certain tribes who were living in India. Got it? What were these? Santhals, Orons, Mundas, Khonds, Begas, Van Gujars, Labadis, and Bakarwalas. You also know that when the Britishers began to rule in India, the life of these tribals totally changed. For example, they were not allowed to practice gym cultivation or to roam freely in the forests. But that doesn't mean they did not revolt against these things. They remained silent. No, not at all. They rebelled from time to time. But what was the defect in these revolts? These revolts were confined to particular tribes. Okay, what were the rebels? First was Coles Rebel. Okay, 1831 to 1832. Second was Santhals Rebellion in 1855. Third rebellion was Bastar Rebellion in 1910. And the fourth was Worli Revolt in 1940. What was defect in these revolts? These were confined to particular tribes. And what is and another revolt which was started by Birsa. What was the new in that? In that rebellion, all the tribes collectively participated. And that is the only rebellion that you have to study today, because these rebellions are not in your syllabus. Only one rebellion which we have to study in detail. That is the rebellion which was started by Birsa. We will study that in detail. Who was Birsa and why did he revolt? What influenced him to revolt? All these things are in today's topic. So what is today's topic then? Birsa and his revolt. Okay, चलो हम आज स्टार्ट करते हैं. Who was this Birsa? ये कौन थे? बिरसा एक आदिवासी थे, मतलब ये अपनी जिंदगी जंगलों में बसर कर रहे थे. ठीक है ना. बिरसा ने जन्म लिया था 1870 में. 1870 में बिरसा ने जन्म लिया था. और ये किस ट्राइब से थे? उस ट्राइब को किस नाम से जाना जाता था? मुंडा ट्राइब. ठीक है ना. उस ट्राइब का नाम क्या था? मुंडा. जिस ट्राइब में बिरसा ने जन्म लिया था, इसलिए उसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा. किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा के नाम से. व्हेन वाज ही बॉर्न? ही वाज बॉर्न 1870. उसने 1870 में जन्म लिया था. और कहां पे जन्म लिया था? छोटा नागपुर. छोटा नागपुर प्लेट्यूज जो झारखंड में है. झारखंड एक स्टेट है, वहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यूज हैं, हिली एरियाज हैं. वहीं पे इस बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था. ठीक है ना. यहाँ तक क्लियर हो गया. बिरसा कौन थे, उसको बिरसा मुंडा क्यों कहा जाता है, कहाँ पे उसने जन्म लिया था और कब लिया था, यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है ना. उसके बाद क्या है? बिरसा मुंडा जब बालिग हो गए, ठीक है ना, अपनी जवानी में वो अक्सर सुना करते थे टेल्स. ठीक है ना. किन से टेल्स सुना करते थे? अपने बुजुर्गों से कहानियां सुना करते थे. किसके मतलब कहानियां सुना करते थे? जो ये मुंडा अपराइजिंग थी.
मुंडा अपराइजिंग, ठीक है ना। मतलब जब मुंडा ट्राइब में कोई इनको क्या करता था, कोई इनको परेशान करता या इनको इनके हक छीनता था, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, दैट इज मुंडा अपराइजिंग। वो किस तरह से अपराइजिंग करते थे, वो किस तरह से इन खिलाफ आवाज उठाते थे। और एक और चीज वो अक्सर सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, दैट वाज गोल्डन एज। वो सुनहरा कल, जब तक ब्रिटिश यहाँ पे नहीं आए थे, तो उनके बुजुर्ग अक्सर ये बातें किया करते थे कि ब्रिटिश के यहाँ आने से पहले हम किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, हमें कितनी आजादी थी, हम किस तरह से रूम फीली कर रहे थे जंगल में। ये सब कुछ चीजें कौन डिस्कस कर रहे थे, उनके बुजुर्ग लोग। और बिरसा जो थे ये अक्सर ये बातें सुना करते थे, ठीक है ना। और ये भी देखते थे कि जो बुजुर्ग लोग थे उनके इस ट्राइब में, वो किस तरह से लोगों को, जो नौजवान नस्ल है, उनको किस तरह से मोटिवेट कर रहे थे कि आप किन के खिलाफ रिबिलियन कीजिए, इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन आउटसाइडर्स के खिलाफ आप क्या कीजिए, रिबिलियन कीजिए, ठीक है ना। वो किस तरह से इनको मोटिवेट कर रहे थे, ये सब कुछ कौन देख रहे थे, बिरसा मुंडा। यही देख देख के वो बड़े हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा वो कहाँ जाते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज। वो अक्सर क्रिश्चियन मिशनरी का मकसद क्या है, टू प्रीच क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी क्या करना, उसको प्रीच करना, क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रागिब करना किसकी तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ, ईसाइयत की तरफ, ठीक है ना। तो यही काम था क्रिश्चियन मिशनरी पे। जब बिरसा मुंडा वहां जाते थे तो वहां उनको कहा जाता था कि आप क्या छोड़ दीजिए, आपकी जो बैड हैबिट्स है, मतलब ट्राइबल्स में अक्सर वो क्या करते, वो शराब पिया करते थे। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज उनको क्या कहते थे, आप ये बैड हैबिट्स छोड़िए और आप क्या एक्सेप्ट कीजिए, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके जो आपकी हार्डशिप है, ठीक है ना, जो आप मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, अगर आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करोगे। तो ये सब चीजें कौन देख रहा था, बिरसा मुंडा। इसी दौरान क्या होता है, 1895 तक पहुंचते पहुंचते जो ये बिरसा मुंडा थे ये बहुत ही मशहूर हो गए। ना कि सिर्फ अपने ट्राइब में मशहूर हो गए, बल्कि जो बाकी ट्राइब्स थे, एडसेंट ट्राइबल जो थे, उनमें भी ये बहुत मशहूर हो गए। इंसान जब मशहूर होता है तब कोई किसी ना किसी वजह से मशहूर होता है, ऐसे ही कोई मशहूर नहीं होता है, किसी की फेम नहीं बढ़ जाती है जब तक उसका कोई कारनामा मशहूर हो, ठीक है ना। तो ये किस चीज के लिए मशहूर हुआ, दो तीन चीजें थी जिनके लिए मशहूर हुआ। एक था ये कि लोगों को लग रहा था कि he could cure disease, ठीक है ना। तीन चीजों के लिए बहुत ही मशहूर हुआ। कौन, बिरसा मुंडा। कब, 1895 तक, ठीक है ना। एक था ये कि ही है, लोगों में ये बात थी कि है मैजिकल पावर्स, उसमें जादुई शक्तियां हैं, किसमें, बिरसा मुंडा है, कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, क्योर एवरी डिजीज, एवरी सॉर्ट ऑफ डिजीज, मतलब जो भी बीमारी है किसी इंसान को, उनका वो इलाज कर सकता है, क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या था, ही कुड मल्टीप्लाई ग्रेन्स, मतलब जो अनाज निकलता है उसको वो दुगना कर सकना है अपने मैजिकल पावर्स से। तीसरी बात क्या थी, ही विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आउटसाइडर्स। और तीसरी बात ये थी, उनको ये लग रहा था, उनको भरोसा हो गया था बिरसा मुंडा पे कि वो हमें बचाएगा। किन से बचाएगा, इंडिकू से, आउटसाइडर से, मतलब ब्रिटिश वालों से हमें बचाएगा। कौन बचाएगा, बिरसा मुंडा, ठीक है ना। तो इन तीन चीजों के लिए जो थे बिरसा मुंडा बहुत ही मशहूर हो गए। और बिरसा ने भी आप सोचा कि मैं क्या करूंगा, मुझे आप आवाज करना उठानी है, किनके खिलाफ उठानी है, जो हम पे यहाँ क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो उसने आवाज उठाना स्टार्ट की 1895 में, ठीक है ना। उसने अब ट्राइब से क्या कहा कि हम लड़ेंगे, किन के खिलाफ लड़ेंगे, पहले लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ लड़ेंगे,
ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन तीन के खिलाफ। मतलब जो लैंड लॉर्ड्स थे वो इन पे जुल्म कर रहे थे, तो इसलिए उनके खिलाफ भी लड़ना है। क्रिश्चियन मिशनरीज आकर तो जुल्म नहीं कर रहे थे, लेकिन ये उनको उनका रिलीजन छीन रहे थे, उनका मजहब छीन रहे थे, इसलिए उनको लगा कि हमें क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ भी आवाज उठानी है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सफरिंग की जड़ थी, ठीक है ना, वो उन्होंने उनको रोका था हर एक चीज करने से, ठीक है ना, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भी आवाज उठानी जरूरी थी। तो इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया किसने? बिरसा मुंडा ने, ठीक है ना। और ब्रिटिश को अब लग रहा था कि बिरसा मुंडा के पॉलिटिकल क्या है, एम है, ठीक है ना, क्योंकि बिरसा मुंडा, उनको लग रहा था कि बिरसा मुंडा चाह रहा है कि वो हमें यहाँ से ओवरथ्रो करेगा और यहाँ पे क्या राज करेगा? बिरसा राज। बिरसा अब यहाँ पे अपना खुद का राज करना चाहता है और खुद लीडर बनना चाहता है, ये किनको लग रहा था? अंग्रेजों को। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1895 में इसको अरेस्ट किया। किसको? बिरसा मुंडा was arrested in 1895 by the British officials, ठीक है ना। 1895 में बिरसा अरेस्ट हुए, ठीक है ना। इसको 3 साल के लिए जेल में रखा गया, ठीक है ना, प्रिजन। He was imprisoned for 3 years, ठीक है ना। 3 साल तक वो जेल में रहे। कौन? बिरसा मुंडा। क्यों उसको जेल भेजा गया? क्योंकि अब उसने स्टार्ट किया, रिवोल्ट किया, स्टार्ट किनके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इसीलिए उसको अरेस्ट किया गया। उसको ये चार्जेस उस पे लगाई गई कि आप लोगों में क्या कर रहे हैं, लोगों में ब्रिटिश को डिफेम कर रहे हो। इसलिए उसको क्या किया गया? उसको इम्प्रिजन किया गया, ठीक है ना। और फिर कब इसको छोड़ा जाता है वहां से? 1897 में। He was released from jail 1897. 1897 में जब उसको जेल से रिलीज किया जाता है तो वो विलेज टू विलेज जाता है, लोगों को क्या करता है? अवेयर करता है कि किस तरह से जो ब्रिटिश वाले हम पे जुल्म कर रहे हैं और हमें किस तरह से इनके खिलाफ लड़ना है, हम किस तरह से इनको ओवरथ्रो कर सकते हैं। अगर हम इनके खिलाफ लड़ेंगे तो हम उनको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया? They started to attack British properties. अब उन्होंने ब्रिटिश के जो भी इदारे उनको मिलते थे उनको उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन मिशनरीज, चर्चेस को भी अटैक उन्होंने स्टार्ट किया, मिशनरीज को भी अटैक किया, पुलिस स्टेशन, और जो बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट होते थे उन पे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक टेक्निक अपने तरीके से वो इनके खिलाफ लड़ना शुरू किया उन्होंने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो बिरसा थे उसने कहा, इनको तशबीह दी कि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसके साथ तशबीह दी? रावण के साथ। राम और रावण की कहानी है ये किसमें? हिंदू रिलीजन में, ठीक है ना। राम ने रावण को क्यों मारा? ठीक है ना, क्योंकि रावण जो है ये क्या माना जाता है? ये बुरा आदमी माना जाता है। इसी तरह से किसने कहा? बिरसा ने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसके मानद है? रावण के मानद है, और हमने इसके खिलाफ लड़ना है अपने तरीके से, अपने मेथड्स हमने अडॉप्ट करने और इनके खिलाफ लड़ना है, इनको हमने ओवरथ्रो करना है। इसके अलावा उन्होंने अपना फ्लैग अडॉप्ट किया, अपना एक फ्लैग बनाया, अपना एक झंडा रखा, वो व्हाइट कलर का था। व्हाइट कलर फ्लैग उन्होंने अडॉप्ट किया अपने लिए। मतलब कि उन्होंने अपने तरीके अडॉप्ट किए। किन के खिलाफ लड़ने के लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके अडॉप्ट किए। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश गवर्नमेंट को रावण के साथ तशबीह दी और रावण को हमने हराना है, उनको यहाँ से भगाना है। इस तरह से अपना फ्लैग बनाया, व्हाइट कलर का फ्लैग, ताकि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती क्या थी कि 1900 में, कब? 1900 में जो बिरसा मुंडा है ये बीमार हो गई, ठीक है ना, और ये मर गई बिकॉज ऑफ $1900 में जो बिरसा मुंडा अभी तक थे ये क्या हो गया? ये मर गए बिकॉज ऑफ कॉलरा। उसको एक बीमारी लग गई, कॉलरा, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो मर गए। और इससे क्या हो गया? जो ये रिवोल्ट था बिरसा का, जो बिरसा ने स्टार्ट किया, ये क्या हो गया? ये सप्रेस हो गया, ये डिक्लाइन हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन रिवोल्ट से क्या मिला? कुछ फायदे मिले, एक दो फायदे जो इसके मिले, इसके नताइज में उनको मिले। तो वो हम दो बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। वो बातें क्या थी? कॉन्सिक्वेंसेस।
कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस रिवोल्ट के. व्हाट इज द फर्स्ट वन? It forced British government to pass laws that would protect the land of tribals. इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, उनको कानून बनाने पड़े जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो कोई आउटसाइडर है वो इनका लैंड इजीली नहीं ले सकता है. किनका लैंड? ट्राइबल्स की जो जमीन है उसको इजीली कोई भी नहीं ले सकता था. किन की वजह से? जो उन्होंने इस रिवोल्ट के बाद लॉज बनाई, कानून बनाए. उन कानून के मुताबिक, उन लॉज के मुताबिक कोई भी आउटसाइडर इनका लैंड, किनका? ट्राइबल्स का लैंड आसानी से नहीं ले सकता था. हो गया ये एक कॉन्सिक्वेंस किस चीज की वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय बिरसा मुंडा. एंड द सेकंड वन क्या है? इट आल्सो शोड दैट द ट्राइबल कुड फाइट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस. इसने ये भी दिखाया कि ट्राइबल पीपल जो है, मतलब जो आदिवासी लोग हैं, उनमें जज्बा है, उनमें कैपेसिटी है, उनमें पोटेंशियल है कि वो किसी भी जो भी उनके खिलाफ नाइंसाफी होगी वो उसके खिलाफ लड़ सकते हैं बाय अडॉप्टिंग देयर ओन वेज, ओन मेथड्स. ठीक है ना, वो अपने तरीके से लड़ेंगे. ठीक है ना, अपने मेथड्स अडॉप्ट करेंगे जैसे उन्होंने किया, रावण के साथ तहजीब दी. ठीक है ना, वो एक यूनिक तरीका था उनका लड़ने का. या अपना एक फ्लैग बनाया, वो भी एक यूनिक तरीका था उनका लड़ने का. ठीक है ना, तो इसने क्या दिखाया कि ट्राइबल जो है उनमें दम है, वो लड़ सकते हैं किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ बाय अडॉप्टिंग देयर ओन वेज. वो अपने तरीके इस्तेमाल करेंगे विदाउट एनी वनस हेल्प, किसी की भी इनको मदद की जरूरत नहीं. ये दो पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स हम इनको कह सकते हैं. ये किस रिवोल्ट की वजह से हमें मालूम पड़ा? जब रिवोल्ट, कौन सा रिवोल्ट हुआ? रिवोल्ट जो किया था किसने? बिरसा मुंडा ने 1895 में. ठीक है ना, तो ये था रिवोल्ट बिरसा मुंडा का जो उसने स्टार्ट किया था. उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. इसी टॉपिक के साथ हमने जो ये लेसन थी ट्राइबल डिस्प्यूट्स एंड विजन ऑफ ए गोल्डन एज, ये आज हमने कंप्लीट कर दिया. इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो अगला लेक्चर जो मैं लाऊंगा वो नया लेसन होगा हिस्ट्री का. ठीक है ना, इस वक्त दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.